we have studied this carpal joint or knee joint. Okay. Any doubt regarding the previous lecture? Joints of this carpals means carpal joint or knee joint or elbow joint. Have you gone through that? पढ़ा था आप लोग ने इसको थोड़ा. Ligaments of the knee joints थे, ठीक है. As such there is no name given to them, बस anterior posterior नाम था और उसमें भी नंबर दिए थे कि 1 है 2 है, ठीक है, और interosseous ligaments of the carpal joint जो नंबर दिए थे. Just you have to learn that, ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है. उस as such कोई नाम नहीं था उसका, ठीक है. Those are the special ligaments. Okay. Now today we start with the joints of the Manus region, means fetlock joint, passion joint and coffin joint. Okay. So because you know that this fetlock joint, Naveen, okay, fetlock joint is present between, where it is located, fetlock joint. Naveen Kumar. नहीं पता बेटा? नवीन, बलवंत. यस मैम. हाँ, फेटलॉक जॉइंट कहाँ होता है बेटा? मैम मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में. गुड, ठीक है. तो this fetlock joint is formed by the distal extremity of the large metacarpal and first phalanx, because in case of ox, as you know, two phalanges are present, two well-developed phalanges, two well-developed digits are present, ठीक है, not phalanges, digits are present, ठीक है. तो hence the distal extremity of the large metacarpal, as you have studied, is divided into two parts by the presence of cleft, ठीक है. cleft के presence से दो division हो जाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है. and each part or each area कह सकते हैं या each condyle भी कह सकते हैं उसको, that accommodates each phalanx, ठीक है. तो उसमें डिवीजन हो जाता है, नीचे वाले एरिया में दो डिवीजन होंगे, ठीक है. एंड ईच डिवीजन अटैच टू द दिस सिंगल digit, ठीक है. एंड ईच डिजिट इज हैविंग 3 phalanges, फर्स्ट phalanx, सेकंड phalanx एंड थर्ड phalanx, ठीक है. थोड़ा आपको दिखा भी देती हूँ मैं. Slide is visible to you? Yes, ma'am. Okay. एक ही डायग्राम है, इसको आपको खुद बनाना है और याद कर लेना है. Okay? This is very important diagram because a single diagram contains everything regarding bones of the forelimb, regarding this region as well as joints. ठीक है, तो इसको आप पढ़ लोगे तो आपको you must know, you are able to know at least the name of the joint and the bones involved in the formation of the joint. Okay. Here you can see the diagram. ठीक है, this is large metacarpal. ठीक है, the large metacarpal is the fusion of dash bones. Can you name them? Third and fourth. ठीक है, third and fourth fused metacarpal. Means third and fourth metacarpal, they get fused to form the large metacarpal. Hence, because of the fusion, you can see the presence of a groove. ठीक है, and this groove indicates the fusion of two bones. ठीक है, and in this groove, the artery, dorsal metacarpal artery runs. ठीक है, आपने अभी arterial system नहीं पढ़ा है फोरलिम का, ठीक है. and having the dorsal and ventral foramen, आप देख रहे हो ये foramen होते हैं आर्टरी की पैसेज के लिए, अंदर जाएगी यहाँ से और यहाँ से जाके बाहर निकलेगी. ठीक है, तो means this groove is visible and that indicates the fusion of third and fourth metacarpal bones. ठीक है, and you can see here the ninth one, this is the fifth metacarpal which is smaller. ठीक है, first and second are absent कह सकते हैं अपन, and here you can see the smaller one, that this is the fifth metacarpal bone.
ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ऑक्स में two metacarpals are there. One is large, and this large metacarpal is the fusion of third and fourth metacarpals, and fifth one is the small one. ठीक है, तो कितनी बोलेंगे? दो बोलेंगे, one large and one small. ठीक है, तो जो small one है that is the fifth one. अब इसी के नीचे आप देखोगे just below this, this is large metacarpal. ठीक है, तो distal extremity of this large metacarpal is divided into two parts. One part this one, another is this. ठीक है, और each part is having a रिज, ठीक है, एंड दैट रिज डिवाइड्स द टू एरियाज. अपन एक को कॉन्डाइल बोल सकते हैं, एक पूरा एरिया, वन कॉन्डाइल, टू कॉन्डाइल, दे आर डिवाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए क्लेफ्ट. क्लेफ्ट होगा इनके बीच में. क्लेफ्ट मतलब एक ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दैट इज सेमी सर्कुलर. ठीक है, एंड दैट क्लेफ्ट डिवाइड्स द दिस डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द लार्ज मेटाकार्पल इनटू टू. ठीक है, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि दिस लार्ज मेटाकार्पल आर फ्यूजन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, तो एक डिवीजन इंडिकेट्स द, सपोज दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन. ठीक है, तो थर्ड का पोर्शन डिस्टल एक्सट्रीमिटी ये मान लो और फोर्थ के मान लो. ठीक है, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए रिज. ठीक है, दैट डिवाइड्स द आर्टिकुलर टू articular areas. ठीक है, and these articular areas they articulate with the proximal extremity of the first phalanx. So ऐसे ही area यहाँ पे भी होगा, that also articulate with the first phalanx of the another digit. ठीक है, तो hence this is one digit, this is another digit. Two digits are present in case of ox. ठीक है, in case of horse how many digits are present? horse में कितनी होगी बेटा? हाँ, गुड. ठीक है, इन केस ऑफ हॉर्स ओनली सिंगल डिजिट इज प्रेजेंट, हेंस दिस जो वहां पे थर्ड मेटाकार्पल होगा. ठीक है, तो देयर इज नो डिवीजन बाय द क्लेफ्ट, वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ओनली सिंगल डिजिट इज देयर. ठीक है, ऑल्दो लार्जर इन साइज, काफी चौड़ी होती है. अपन ऑक्स की दो मिलाएंगे तो हॉर्स की एक बनेगी. ठीक है, विड्थ काफी ज्यादा होती है उसकी. ठीक है, साइज में काफी बड़ी होती है, बट ओनली सिंगल this digit is present having the single this phalanges are very large in size. ठीक है, first phalanx, second phalanx और third देखोगे तो काफी बड़े रहेंगे in comparison to the this phalanges of the ox. ठीक है, तो two digits are there in case of ox. ठीक है, this is first phalanx, this is second phalanx and this is third one. ठीक है, then third it corresponds to the shape of the hoof. कैसा रहेगा? जैसे hoof का आप shape देखते हो सेम वैसे ही रहता है. ठीक है, and that remains covered with the black box. ठीक है, और horny box जिसको कह सकते हैं, and that is known as hoof. ठीक है, तो आप देखोगे first phalanx length wise ज्यादा है and the second phalanx is shorter. Okay, अब अपन को पढ़ना है joints of this region. ठीक है, तो here the joint, this joint is known as fetlock joint, which is present between the distal extremity of the large metacarpal and proximal extremity of the first phalanx. ठीक है, तो ये कौन सा joint हो गया? fetlock joint. और another name for this fetlock joint, anybody can answer? Name of the fetlock joint, another name as per the bone involvement of the bones. पता चल रहा है? कार्पोफैलेंजियल जॉइंट. गुड. ठीक है, मेटाकार्पोफैलेंजियल आर्टिकुलेशन. जब इस अपन बोन इन्वॉल्व करके बोलेंगे तो आर्टिकुलेशन वर्ड, कैपुलो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन, तब जॉइंट नहीं बोलेंगे. ठीक है, वो एक टेक्निकल टाइप हो जाता है. सिमिलरली जैसे अगर आप बोलोगे दिस ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन, सिमिलरली दिस फेटलॉक जॉइंट इज आल्सो नोन एज मेटाकार्पोफैलेंजियल आर्टिकुलेशन. ठीक है, caudal to this joint you can see presence of small bones are there and these bones are known as sesamoids. ठीक है, for each digit. ठीक है, for each digit two sesamoid bones are present. ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? proximal one मैम 4. ठीक है, गुड. ठीक है, तो for each digit two sesamoid bones are present, although we are able to see one only because a lateral view है. ठीक है, तो क्या होगा? these are known as proximal sesamoid bones. ठीक है, तो proximal sesamoid bones for each digit are 2 in number. ठीक है, and each limb are 4 in number. ठीक है, each limb की बात आएगी तो कितने हो जाएंगे? 4, because एक limb में 2 digits है तो 2 for each digit, तो कितने हो जाएंगे? because 2 digits are there, तो total 4 proximal sesamoid bones are present. Have you seen these sesamoid bones? मैडम ने दिखाया होगा आपको. यस मैम. ठीक है, बोन में लगी हुई यहाँ पे अपने यहाँ रखी हुई है, बहुत अच्छी ड्राई है. तो
इनको देखा होगा आपने। तो फेटलॉक जॉइंट में क्या हो जाएगा, फेटलॉक जॉइंट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेटाकार्पल फर्स्ट फैलेंक्स एंड, क्योंकि पीछे से क्या आ रहा है इसमें, सिस्मोइड बोन से, तो एंड सिस्मोइड बोन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज जॉइंट, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी लिगामेंट्स व्हिच आर अटैच्ड टू द सिस्मोइड बोन्स, ठीक है। तो दिस इज द फेटलॉक जॉइंट। देन नेक्स्ट, Ma'am, यस, Ma'am, Shan want to join the class. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ द सिस्मोइड बोन। सिमिलरली अगर आप देखोगे between the joint present between the first phalanx and second phalanx, name this joint between the first and second phalanx, Paschen joint, ठीक है। another name for this, क्योंकि this joint is present between the first and second phalanx, ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं proximal interphalangeal articulation. Why we have given the proximal word? इंटरफैलेंजियल आर्टिकुलेशन तो बोल रहे हैं, व्हाई वी कॉल इट एज प्रॉक्सिमल, किसको बताओ, टू द मीडियल लाइन टू द ट्रंक। नहीं, प्रॉक्सिमल क्यों बोला है, मतलब डिस्टल भी कुछ होगा, कॉफिन जॉइंट को डिस्टल बोलेंगे मैम, कॉफिन जॉइंट को बोला, ठीक है। तो जो अगर ये वाला जॉइंट होगा दैट इज द डिस्टल, बिकॉज दिस जॉइंट इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन फैलेंजेस, दिस इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन फैलेंजेस, तो इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोल दिया और इसको डिस्टल बोल दिया, ठीक है। तो दिस इज पैशन, दिस इज कॉफिन जॉइंट। एनीबॉडी वुड just I'm going to summarize here. This is the fetlock joint, ठीक है, having sesamoid bones caudally. Then this is the Paschen joint, also known as proximal interphalangeal articulation, ठीक है, present between the first phalanx and second phalanx, ठीक है. Then another joint which is present between the second and third, ठीक है, आपने नाम बता ही दिया, coffin joint है, and this is also known as distal interphalangeal articulation. This is also known as distal interphalangeal articulation, ठीक है. And behind this joint also there is a presence of a sesamoid bone, ठीक है. तो each digit is having a single this sesamoid bone, ठीक है. यहाँ पे कितनी थी, एक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा साइड में भी दिख रही है. तो each digit is having two sesamoid bone. तो proximal कितनी थी, for single digit, इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो, ठीक है. तो here this is the distal interphalangeal articulation having caudally presence of a single sesamoid bone. Generally in case of this horse, this is known as navicular bone, ठीक है. navicular bone कहेंगे distal sesamoid को. कभी navicular word आता है तो that is the distal sesamoid bone. particularly generally horse में बोलते हैं, ठीक है. इसमें भी कभी कभी लिखा रहता है क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट में नेविकुलर लिखा हुआ है. ओके, तो दिस इज डिस्टल सेसमॉइड, हियर इज द प्रॉक्सिमल सेसमॉइड. तो प्रॉक्सिमल फॉर ईच डिजिट 2 एंड ईच लिम्ब के लिए हो जाएगा, मींस फॉर 2 डिजिट्स 4 प्रॉक्सिमल सेसमॉइड बोन्स आर प्रेजेंट, वेयर एज डिस्टल सेसमॉइड्स आर 2 इन नंबर, 1 फॉर ईच डिजिट, ठीक है. तो इतना क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? No, ma'am. ओके, तो देयर आर लिगामेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है. अब क्या होगा इसमें, बिकॉज दीज 3 जॉइंट्स जो अपन पढ़ रहे हैं, दे आर टाइप क्या होना चाहिए इन जॉइंट्स का, आपको देख के बता सकते हो. विच टाइप ऑफ जॉइंट इज देयर, मींस एज पर मूवमेंट. चाहे ये वाला देखोगे, चाहे ये वाला देखोगे, सोचो. मैक्सिमम जॉइंट्स वही है. एनीबडी? ऑल द 3 जॉइंट्स. might be hinge joint. hinge joint, good, ठीक है. all the 3 are gingivimus और hinge joint, ठीक है. तो there is peculiar characteristic, मतलब वहां पे जो ligaments हो गए, in case of hinge joint there is presence of the collateral ligaments on each side, ठीक है. presence of the collateral ligaments, any gingivimus joint or hinge joint, because these collateral ligaments they prevent the lateral movement of the bones, ठीक है. तो they support that this joint from the lateral aspect. तो कोई भी hinge joint आप पढ़ोगे तो always presence of the this collateral ligaments apart from the capsular,
तो यहाँ पे जरूर आपको कोलेटरल लिगामेंट्स दिखाई देंगे। आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो पढ़ा था, शोल्डर जॉइंट, वहां आपने कोलेटरल लिगामेंट नहीं देखा था, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ द जॉइंट्स आफ्टर दैट मीन्स दिस एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है, कार्पल जॉइंट हो गया, इन दीज एरिया, ठीक है, you have seen the collateral ligaments. Why? Because these collateral ligaments from medial side and lateral side, ठीक है, they support the this joint, ठीक है। तो आप आंख मूंद के कभी भी कोई hinge joint होगा तो आप collateral ligaments तो जरूर लिख ही देना, ठीक है, वो होते ही है सब में। कैप्सुलर लिगामेंट होगा, कैप्सुलर लिगामेंट मैंने बता ही दिया था, बिकॉज कैप्सुलर लिगामेंट ऑलवेज एक्सटेंड फ्रॉम द this part of one bone to the other, ठीक है, they form the joint capsule and these are nothing but the outer part of the joint capsule। तो वो तो जरूर हो गई सभी में कैप्सुलर लिगामेंट। apart from the capsular ligament, any ganglimus joint, any this hinge joint that is having the collateral ligaments from on each side, ठीक है। मीडियल साइड में होगा तो मीडियल बोलेंगे, लैटरल साइड में होगा लैटरल बोलेंगे। यहाँ पे चूंकि डिजिट नीचे की तरफ जब आप आओगे डिजिट में, तो वहां कभी कभी आप एक्सिल एबेक्सिल भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हर जॉइंट में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बिकॉज यहाँ वी आर नॉट एबल टू सी, अगर इधर वाला होगा तो इसको मीडियल नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मीडियल ये वाला होगा, तो वी कैन से एक्सियल फॉर दिस वन एंड एबेक्सिल फॉर दिस टू, ठीक है। तो कोलेटरल लिगामेंट का प्रेजेंस इन जॉइंट्स में होगा। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द जॉइंट्स। पिक्चर which shows all the joints of the Manus region, ठीक है। मैंने आपको बोन्स तो अंदर की बता दी, अब बोन नहीं दिखाई दे रही आपको, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ लिगामेंट्स यू आर एबल टू सी हियर, ठीक है। तो बोन्स आपने देख लिया तो उसको दिमाग में रखो, देन वी वन बाय वन आई एम डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट लिगामेंट्स, ठीक है। तो दिस इज द लार्ज मेटाकार्पल बोन, ठीक है। ये जो बाउंड्री जो जा रही है पूरी, तो ये क्या हो जाए, यहाँ कार्पल हो गए, दिस इज द लार्ज मेटाकार्पल लिखा हुआ भी है। तो अब इसके नीचे क्या आना चाहिए, these two they may be the first phalanx, ये क्या होंगे, these two are the first phalanges, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ देखोगे दिस जॉइंट इज द फेटलॉक जॉइंट, जहाँ पे पीछे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रॉक्सिमल सिस्मोइड बोन्स जो गोल गोल चारों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज द कॉर्डल व्यू ऑफ द फेटलॉक जॉइंट, ठीक है। तो फेटलॉक जॉइंट में अपन सबसे पहले क्या बोलेंगे, फेटलॉक जॉइंट जो है सबसे पहले क्या आ जाएगा, द बोन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फेटलॉक जॉइंट एज यू नो इज द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द लार्ज मेटाकार्पल बोन एंड फर्स्ट फैलिंग्स, ठीक है। बोन इन्वॉल्व हो गया। सेकेंड थिंग, द मूवमेंट कौन सी होगी इसमें, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, ठीक है। अब लिगामेंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जॉइंट कैप्सूल बन गया और लिगामेंट्स ऑफ द दिस जॉइंट। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि हियर on each side because this is a ganglimus type of joint, तो कौन से लिगामेंट आने चाहिए यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में, कौन बताएगा, इंटरऑस्टियस लिगामेंट, नहीं साइड में, दोनों साइड में, इधर और इधर, बिकॉज अभी मैंने बताया था कोलेटरल लिगामेंट। तो ये आपको दिमाग में रखना ही है, बिकॉज क्योंकि ये गिंगलीमस है, बाकी तो लिगामेंट आएंगे। अभी आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, कोलेटरल लिगामेंट्स, ठीक है। तो दीज यू कैन सी इधर लिखा हुआ है, दिस इज द कोलेटरल लिगामेंट। अगर ये पीछे साइड का है और अगर अपन राइट लिम्ब मान रहे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा होना चाहिए, अगर ये राइट लिम्ब है एंड कॉर्डल एस्पेक्ट है, एनीबॉडी, दिस वन इज द मीडियल होगा लैटरल होगा, बताओ, सपोज मीडियल, हाँ बताओ, मीडियल, ठीक है। अगर अपन कह रहे कि दिस इज द दिस राइट लिम्ब, ठीक है, राइट लिम्ब का कॉर्डल व्यू है तो दिस वन इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, ऑफ द फॉर द दिस फेटलॉक जॉइंट, ठीक है। तो दिस इज मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज द लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। यहाँ लिखा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करना चाहिए, एनीबॉडी, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बेटा, distal extremity of metacarpal to phalanx। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है। तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द दिस लार्ज मेटाकार्पल टू द फर्स्ट फैलिंग्स, ठीक है। तो वो मीडियल साइड में हो जाएगा और लैटरल में भी ऐसी होगा, डिस्टल एक्सट्रीमिटी लेटरल पोर्शन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द लार्ज मेटाकार्पल टू द फर्स्ट फैलिंग्स। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग द कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द फेटलॉक जॉइंट।
ठीक है, तो पहले, और इसके अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट, तो बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द दिस जॉइंट, ठीक है, तो कैप्सुलर लिगामेंट क्या होंगे, अंदर ही अंदर चलेंगे, ठीक है, तो कैप्सुलर लिगामेंट फ्रॉम द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द दिस लार्ज मेटाकार्पल अप टू द फर्स्ट फेलिंक्स, तो इसके लिए अलग होगा कैप्सुलर लिगामेंट, इसके लिए अलग होगा। ये समझ में आया? क्योंकि दो आर्टिकुलर एरिया है, वन इज दिस वन, ठीक है, क्योंकि आपने अगर मेटाकार्पल देखा होगा तो एक एरिया ये होगा, दूसरा ये होगा, बीच में क्लेफ्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल इस एरिया के जो अगर आप याद करोगे बोनी पोर्शन, तो वहां से लेके एक ट्यूब लाइक कैप्सुलर लिगामेंट दैट एक्सटेंड फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द वन पार्ट ऑफ द दिस लार्ज मेटाकार्पल टू द फर्स्ट फेलिंक्स, ठीक है, ये वाली। फिर यहाँ वाला जो कैप्सुलर लिगामेंट होगा वो इसको रैप करेगा पूरा का पूरा और फर्स्ट फेलिंक्स तक जाएगा। इज इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं बोन के फॉर्म में बता रही हूँ। कैप्सुलर लिगामेंट समझ में आया? एक बार वो बता दीजिए। देखो, आप अगर बोन को याद करो, बोन याद है आपको? बिकॉज दिस डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द दिस मेटाकार्पल हैज टू डिवीजन, याद होगा, बीच में क्लेफ्ट है, ठीक है, तो वन डिवीजन से पूरा उसको चारों तरफ से रैप करते हैं वन कैप्सुलर लिगामेंट जो रहेगा दैट अटैचेस द डिस्टल एंड ऑफ द वन पोर्शन ऑफ द लार्ज मेटाकार्पल, ठीक है, और वो ट्यूबुलर टाइप का कैप्सुलर लिगामेंट कहां तक जाएगा, पूरा कंप्लीटली एनसर्कल करेगा एंड दैट एक्सटेंड अप टू द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द फर्स्ट फेलिंक्स, ठीक है। वो इमेजिन करना पड़ेगा, अगर आपको बोन अच्छे से नहीं बनेगी तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। आपको बोन अच्छे से याद होना चाहिए कि इसमें दो डिवीजन थे, नहीं याद आ रहा? और इसके पहले आपने बोन देखी भी होगी, चाहे तो मैं उसमें दिखा दूंगी अभी फिर से, ठीक है, बोन भी। अच्छा, ठीक है, तो कैप्सुलर लिगामेंट बता दिया आपको, देन कोलेटरल लिगामेंट्स, ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, देयर आर सम अदर लिगामेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ आप देखोगे इस एरिया में काफी सारे लिगामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस व्हेन एनिमल मूव्स कंटिन्यूअसली, एक्सटेंशन फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो बिकॉज फ्रॉम द कॉर्डल एस्पेक्ट यू कैन सी एक आपको यहाँ पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दीज आर द स्पेशल लिगामेंट्स फॉर दिस जॉइंट, ठीक है, नोन एज सुपीरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट और सस्पेंसिव लिगामेंट। दिस होल पिंक कलर जो बैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज सुपीरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट। लिगामेंट मींस मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, तो दिस इज अ बैंड। तो इसमें अपन कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कैप्सुलर लिगामेंट एंड कोलेटरल लिगामेंट, सिस्मोइडियन लिगामेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। सिस्मोइडल लिगामेंट्स एक भी नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो पहला टाइप मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो उनको अपन कहेंगे सुपीरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट, यू कैन सी, ठीक है, दिस सुपीरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट डिवाइड्स इनटू टू। अच्छा, ये कहां से आ रहा है? ये बैंड जो है आप देख रहे हो फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द, ठीक है, डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स, ठीक है, ये सेकंड एंड थर्ड फ्यूज दिख रही है आपको, और ये हो सकता है फोर्थ भी, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड फ्यूज कार्पल बोन से याद आ रही, ठीक है, एंड दिस वन इज द फोर्थ। तो इसका अटैचमेंट कहां से है? फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन्स, ठीक है, फ्रॉम हियर इट गेट्स ओरिजिनेट, यहां से अटैचमेंट होगा, फिर ये नीचे आएगा, ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द सुपीरियर सिस्मोइडियन लिगामेंट, ठीक है। व्हेन इट रन्स डिस्टली, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, देन दिस लिगामेंट इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। फिर से सुन लो, कहां से आ रहा है? कार्पल बोन से आ रहे हैं, ठीक है, ये बैंड इट रन्स डिस्टली रन कर रहा है, ये पूरा का पूरा जहां मेरा कर्सर है। देन इन दिस एरिया मिडिल ऑफ दिस अपन कह सकते हैं लार्ज मेटाकार्पल, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट आपको ये दिख रहा है जो कर्व कर गया, दिस इज सुपरफिशियल पार्ट, दिस इज डीप पार्ट। तो सुपरफिशियल पार्ट को अपन कॉर्डल पार्ट कह सकते हैं और डीप पार्ट को क्रेनियल पार्ट या एंटीरियर पार्ट। एनी डाउट? कोई कुछ पूछ रहा था? अपार्ट फ्रॉम कोलेटरल लिगामेंट्स एंड कैप्सुलर लिगामेंट, सिस्मोइडियन लिगामेंट्स, तो वन कैटेगरी जो पहला बता रही हूँ दिस सिस्मोइडियन लिगामेंट्स बिकॉज सिस्मोइड बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो सिस्मोइडियन लिगामेंट में पहले अपन कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। दिस सस्पेंसरी लिगामेंट इट एक्सटेंड फ्रॉम द
distal row of the carpal bones, ठीक है, and is a band like flat band like structure. जितनी चौड़ाई किसकी होगी, मेटाकार्पल की करीब करीब उतना चौड़ा होगा. Also known as suspensory ligament, ठीक है. It runs distally and in the distal part या middle part के बाद में it divides into two parts. One is superficial, another is deep. सुपरफिशियल को अपन क्योंकि पीछे की तरफ, सुपरफिशियल यहाँ पीछे जाएगा तो कॉर्डल पार्ट कह सकते हैं, एंड डीप पार्ट को या वोलार पार्ट कह सकते हैं इसको, और डीप पार्ट को वी कैन कॉल इट एज क्रेनियल पार्ट. ये समझ में आया, क्योंकि बुक में यहाँ पे इसको डीप को लिखा है क्रेनियल और सुपरफिशियल को लिखा है कॉर्डल पार्ट. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. सुपरफिशियल मीन्स कॉर्डल पार्ट एंड डीप मीन्स एंटीरियर पार्ट. ओके, अब क्या होगा, यू कैन सी हियर द सुपरफिशियल पार्ट, इट रन्स लाइक दिस. ठीक है, एंड this joins with the, ये देखो join कर रहा है, it joins with the tendon of the superficial digital flexor muscle. ये जो मसल आ रही है, this is superficial, ये वाली जो है digital flexor. ठीक है, इसके नीचे एक और मसल होती है, this is deep digital flexor. Because you have not studied the muscles, अभी मसल आपको नहीं पढ़ा पाई थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही थी दिखाने में. ठीक है, तो आप जब वहां आने के बाद देखोगे तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सुपरफिशियल एंड डीप. ठीक है, तो सुपरफिशियल जो, क्योंकि ये लिगामेंट है, लिगामेंट के ऊपर ही मसल चलेगी. अगर लाइव स्टेट में आप देखोगे इतने दूर दूर तो होता नहीं है, लिगामेंट के जस्ट ऊपर यहाँ पे मसल चलती है. ओके, तो पहले डीप डिजिटल फ्लेक्सर जाएगी, उसके ऊपर जाएगी सुपरफिशियल फ्लेक्सर. ठीक है, तो नीचे ये मसल है एंड अबव दिस अनदर मसल दैट इज सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर. तो दिस सुपरफिशियल पार्ट जो है इट जॉइंस विद द टेंडन ऑफ द सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर. दोनों ज्वाइन करने के बाद दे लीव वन स्पेस. ठीक है, दीज टू ज्वाइन, एक ये वाला पार्ट टेंडन ऑफ द सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर एंड हियर दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट. ठीक है, और सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट भी इसका नाम है. जब ये और ये ज्वाइन करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला, ठीक है, देन दे लीव अ स्पेस और ट्यूबुलर स्पेस कहेंगे, एंड दिस ट्यूबुलर स्पेस ये वाला दैट गिव्स पैसेज टू द टेंडन ऑफ द डीप डिजिटल फ्लेक्सर. ये देखो टेंडन यहाँ से पास हुआ इस ट्यूब से एंड इट कम्स आउट फ्रॉम हियर. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? क्योंकि ये आपको डिफिकल्ट इसलिए लगेगा बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड द मसल. एनीबडी? कोई डाउट नहीं? नो रिस्पॉन्स, तो कुछ समझ नहीं आता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, ऐसे तो हम लोग कैसे पढ़ाए बताओ? आ गया मैम, समझ में आ गया. ठीक है, अच्छा ये जो मसल का जो नाम लिखा है सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर, व्हाट डज इट इंडिकेट? कोई बताएगा? क्योंकि मैंने मसल को पहले ही बताया था कि नेम ऑफ द मसल इंडिकेट समथिंग, तो इससे कौन बताएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है? एनीबडी? अब आपको खुद से दिमाग भी लगाना है. ठीक है, जस्ट स्पून फीडिंग नहीं है. बताओ क्या इसका नाम, इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मसल सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर? सुपरफिशियल उसकी पोजीशन बता रहा है, डिजिटल वो डिजिट्स के लिए हैं जो भी फेलेंजेस है उनके लिए, फ्लेक्सर मतलब उसका मूवमेंट क्या हो रहा है. हाँ, गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो मतलब अगर मैंने नहीं भी पढ़ाया तो आपको एटलीस्ट इसमें समझ में आ रहा है. सुपरफिशियल पोजीशन मींस सुपरफिशियल की डीप दूसरी है, इसलिए सुपरफिशियल बोला है, तो ये वाली डीप है. डिजिटल का मतलब है कि दिस मसल इट एक्ट्स ऑन द डिजिट्स. ठीक है, जॉइंट्स ऑफ द डिजिट्स, तो उनका क्या एक्शन करेगा? एक्ट तो कर रहा है बट मेन फंक्शन इज टू फ्लेक्स. फ्लेक्सर मसल है, इसलिए पीछे की तरफ है. तो जैसे अपने हाथ को आप रखोगे, उंगली को मोड़ोगे तो पीछे की तरफ मुड़ती है ना. अपना पाँव आप सीधे रख के देखो एंड यू दिस टर्न योर फिंगर्स, तो फिंगर्स उल्टा तरफ तो नहीं जा रहे आपके, बाहर की तरफ. इमेजिन कर रहे हो, अंदर की तरफ जा रहे हैं ना आपके पाम में. तो मीन्स योर जो फ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन योर डिजिट्स. जितने भी फैलेंजेस है आपके तीनों हाथ के, देखो आप अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्शन एक्शन. ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सर मसल. तो सिमिलरली एनिमल में भी ऐसे ही होता है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सर मसल. ठीक है, उनके जो डिजिट्स होंगे वो टर्न करेंगे पीछे की तरफ, मूव करेंगे. ठीक है, फ्लेक्शन टेक्स प्लेस. इज इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अपने हाथ को करके देखो, समझ में आएगा. इज इट क्लियर? यस.
यस मैम। और जब मसल पढ़ाएंगे तो और बता देंगे, ठीक है। फिर बैक आओ फिर से, ठीक है। तो दिस सुपीरियर सेसमोइडल लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट जॉइंट्स विद द superficial tendon of the superficial digital flexor muscle, forms a tube like structure or tunnel like structure, and that tunnel like structure gives passage to the tendon of the deep digital flexor muscle. इतना याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। देन डीप पार्ट, ठीक है। तो बिकॉज सिसमोइडल लिगामेंट के दो पार्ट बता दिए, पहला सुपरफिशियल हो गया एंड दिस डीप पार्ट। ये डीप पार्ट कहाँ जा रहा है फिगर में बताओ, खुद देख के बताओ। फर्स्ट फेलिंग्स, सिसमोइड, ठीक है, नाम ही सिसमोइडल लिगामेंट। तो डीप पार्ट्स जो है, ठीक है, इट रन्स डिस्टली एंड डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, बिकॉज 4 सिसमोइड बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ ये 4 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। एंड ईच पार्ट जो है करस्पॉन्डिंग सिसमोइड बोन से अटैच हो रहा है, ठीक है। हेंस द नेम गिवन सिसमोइडियन लिगामेंट्स, ठीक है। हालांकि ये तो ज्वाइन नहीं हो रहा, पर इसका जो डीप पार्ट है दैट जॉइंस विद द सिसमोइड बोन्स, बिकॉज 4 सिसमोइड बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच लिम्ब, ठीक है। दीज आर द प्रॉक्सिमल सिसमोइड बोन्स। तो ईच डिवीजन, जो 4 डिवीजन हो गए, तो ईच डिवीजन जॉइंस विद द सिसमोइड बोन, ठीक है। ये क्लियर हो गया रिगार्डिंग सुपीरियर सिसमोइडियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। एनी डाउट? चलो, इसके अलावा आपको और कुछ सिसमोइडियन लिगामेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी हियर 1 2 3 4 these sigmoid bones are attached with the this suspensory ligament, जिसको अपन superior sigmoid ligament कहते हैं। apart from this, these sigmoid bones are interconnected। दिख रहे हैं आपको बैंड्स, एक बैंड, ये 2 बैंड, ठीक है। Yes, तो ma'am. बिकॉज सिसमोइड ma'am. बोन्स आर 4, तो इंटर सिसमोइडियन लिगामेंट कितने होने चाहिए आप बताओ? 3, गुड, ठीक है। बिकॉज दीज आर द इंटर सिसमोइडियन लिगामेंट, ठीक है। सिसमोइड बोन्स आर 4 इन नंबर, तो इंटर सिसमोइड लिगामेंट होंगे 3 इन नंबर, 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके अलावा यू कैन सी फ्रॉम द मीडियल सिसमोइड, मतलब इस मीडियल मोस्ट सिसमोइड बोन है, यहां से भी एक लिगामेंट जा रहा है, बिकॉज दीज बोन्स दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। इसके अलावा बिकॉज दीज हैव टू कनेक्ट विद द बोन ऑल्सो, मेटाकार्पल से भी जाके जुड़ना है इसको, यहां से भी, यहाँ भी, तो ये कहलाएंगे कोलेटरल सिसमोइड लिगामेंट। दीज आर नॉट द इंटर सिसमोइडियन, ठीक है। तो दिस इज द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। क्यों? क्योंकि मीडियल साइड है बोन का, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम इंटर सिसमोइडियन लिगामेंट, ठीक है, कौन कौन से सिसमोइडियन लिगामेंट अपन ने देख लिया। फर्स्ट आपने ये वाला देखा, दिस इज द सुपीरियर सिसमोइडियन लिगामेंट, ठीक है, जो कि बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ द सिसमोइडियन लिगामेंट्स, दीज आर, क्या नाम है इनका, एनीबॉडी, जो मैंने कर्सर रखा है? इंटरसिसमोइडियन लिगामेंट, ठीक है, गुड, ठीक है। अनदर वन, जो ये और ये होंगे, दोनों ये क्या होंगे, ये वाला जो मैंने कर्सर रखा है, कोलेटरल सिसमोइडियन, Collateral sigmoidal ligament. दिस वन इज द मीडियल और लैटरल? लेटरल, लैटरल रहेगा, ठीक है। जो ये रखा है, तो ये मीडियन कोलेटरल हो गया, तो ये कौन सा हो गया, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। हालांकि क्योंकि इसमें अपन ने लिम्ब कौन सा राइट लेफ्ट नहीं बताया, फिर भी आप ये कह सकते हैं दिस वन इज द मीडियल। अगर अपन राइट लिम्ब मान रहे हैं तो दिस इज द मीडियल, नॉट मीडियन, ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल collateral sisamoidian ligament, and this one is the lateral collateral sisamoidian ligament। काफी लंबा नाम हो गया, ठीक है। एंड इनके बीच बीच में जो हो गया, these are the intersisamoidian ligament। अभी इसमें कोई डाउट रिगार्डिंग सस्पेंसरी लिगामेंट, रिगार्डिंग इंटरसिसमोइडियन लिगामेंट एंड कोलेटरल सिसमोइडियन लिगामेंट, इसमें कोई डाउट है आपको? एनीबॉडी? नहीं हो तो नहीं, नो बोलो बेटा, यस हो तो यस बोलो, हमको कुछ समझ तो आए। नो मैम, No, ma'am. नो डाउट। ठीक है। अब इसके अलावा आपको कुछ लिगामेंट ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक ये दिखाई दे रहा है, और वन आप एक पेयर देख रहे हैं, क्रिस क्रॉस हो रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ईच अदर, ये दिख रहे हैं, दिस वन
क्रॉसिंग दिख रही है और एक बैंड टाइप का आ रहा है, बिकॉज दीज सिस्मोइड बोन्स, Yes, ma'am. ठीक है, दे हैव टू जॉइन विद द फर्स्ट फैलेंक्स आल्सो, नीचे भी जाना है, ठीक है, यहां से लेके नीचे तक जाना है इनको, ठीक, तो इनको कहेंगे अपन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सिस्मोइडियन लिगामेंट, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिस इज जो क्रिस क्रॉस लाइक जा रहा है, दिस इज द डिस्टल सिस्मोइडियन लिगामेंट, और ये नीचे की तरफ ये जा रहे हैं, ठीक है, इनको अपन कहेंगे प्रॉक्सिमल सिस्मोइडियन लिगामेंट, ठीक है। तो ये वाला जो जा रहा है दैट कम्स फ्रॉम द सिस्मोइड अप टू द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फर्स्ट फैलेंक्स, ये यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्टल सिस्मोइडल लिगामेंट जा रहे हैं, दे क्रॉस ईच अदर, और ये अपोजिट साइड में ज्वाइन होंगे। इट रन्स फ्रॉम द वन सिस्मोइड बोन एंड क्रॉसेस द दिस जॉइंट एंड जाके अपोजिट साइड में अटैच हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सिस्मोइडियन लिगामेंट, ठीक है। डिस्टल के दो पार्ट है, ठीक है, एक आ जाएगा सीधे सीधे जा रहा है, और दूसरा जो क्रूशिएट टाइप जा रहा है दैट क्रॉसेस ईच अदर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डिस्टल वाले को अपन कहेंगे, ये वाला जो पार्ट जा रहा है इसको सुपरफिशियल कहेंगे, और जो क्रिस क्रॉस कर रहा है दैट इज द डीप पार्ट, ठीक है। तो डिस्टल लिगामेंट्स आल्सो, ये वाला तो ऊपर वाला हो गया प्रॉक्सिमल वाला, डिस्टल में आप फिर से देख लो, हैज टू पार्ट्स, दिस इज सुपरफिशियल पार्ट जो सीधा सीधा जा रहा है, और जो क्रिस क्रॉस कर रहा है दैट इज द डीप पार्ट, ठीक है। तो जो सीधा पार्ट जा रहा है इट कम्स फ्रॉम द दिस सिस्मोइड बोन एंड अटैच्ड टू द फर्स्ट फैलेंक्स, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द फर्स्ट फैलेंक्स, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये वाले लिगामेंट्स में? दोनों को ही डिस्टल लिगामेंट बोलेंगे, ठीक है। डिस्टल लिगामेंट का दिस वन इज द सुपीरियर, वन फॉर ईच अपन कह सकते हैं सिस्मोइड के लिए है, ठीक है, वो भी लैटरल साइड की। ये क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो हो गया रिगार्डिंग दिस फेटलॉक जॉइंट। फेटलॉक जॉइंट में आपने काफी सारे लिगामेंट्स देख लिए, ठीक है। कौन कौन से बता दो आप फिर से? सुपरफिशियल सिस्मोइडल लिगामेंट, पहले कौन सा? सबसे पहले तो जो बेसिक है उनको बताओ, सिस्मोइडियन बाद में बताना, बेसिक पहले बताओ। हाँ, लेटरल लिगामेंट, एनीबॉडी? then intersistomoidal, then collateral sistomoidal, हाँ, distal sistomoidal and superficial sistomoidal, also known ठीक है। as सुपीरियर कह सकते हैं एंड डिस्टल, सुपीरियर इनको बोला गया है इन्होंने, ठीक है। और डिस्टल क्योंकि सुपीरियर मतलब जो सिस्मोइड बोन से ऊपर की तरफ जो मेटाकार्पल से आ रहे हैं, और डिस्टल मींस जो मेटाकार्पल से फर्स्ट फैलेंक्स तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज सुपरफिशियल, डिस्टल में भी दो पार्ट हो गए, ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम द सिस्मोइड बोन अप टू द फर्स्ट फैलेंक्स। और इसके अलावा जो है दूसरा जो निकल रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस क्रॉस, ठीक है। दो निकल रहे हैं, एक सीधा चला जाएगा और डीप में आप देखोगे क्रिस क्रॉस कर लेगा, मींस इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सिस्मोइड बोन एंड runs obliquely, ठीक है, and to join with the opposite part of the first phalanx, proximal extremity of the first phalanx, opposite जा रहा है, ठीक है। तो they cross each other, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? प्रॉक्सिमल सिस्मोइडियन लिगामेंट कौन सा है? प्रॉक्सिमल ये पूरे को अपन कह सकते हैं, जो ये सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट है ना, इनको अपन प्रॉक्सिमल पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है, ये Okay. बैंड जो दिख रहा है ना, सुपीरियर कह लो या प्रॉक्सिमल, जो सिस्मोइड बोन्स के नीचे आ रहा है इसको अपन डिस्टल कह सकते हैं। ये तो कोलेटरल चल रहा है साथ साथ में, मतलब इंटर और कोलेटरल ये इस लेवल पे है, ठीक है। तो इसमें नाम आ गया था इंटर और कोलेटरल, दो कैटेगरी देख ली थी। इसके ऊपर वाले जो ये आ रहे हैं दोनों, दे कैन बी द सुपीरियर, ठीक है, और प्रॉक्सिमल, ठीक है। सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट दे आर नथिंग बट द प्रॉक्सिमल, क्योंकि दे आर प्रॉक्सिमल टू द सिस्मोइड बोन्स, ठीक है।
तो इनको अपन सुपीरियर भी कह सकते हैं, ये प्रॉक्सिमल है। इसके नीचे जो आ रहे हैं इनको डिस्टल दे दिया, ठीक है। इसलिए डिस्टल ये है क्योंकि प्रॉक्सिमल ये वाले हैं, एक इसी लेवल पे जा रहा है, एक इनके ऊपर को अपन कह लो प्रॉक्सिमल कह लो, ये सुपीरियर। प्रॉक्सिमल टर्म वैसे यूज नहीं करते थे, मेनली सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट है। एंड द लिगामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो दिस रो, इस रो के नीचे जो फर्स्ट फैलेंक्स तक आ रहे हैं, एंड दीज आर द डिस्टल सिस्मोइडल लिगामेंट। अब इसमें भी दो कैटेगरी हो गई, एक सुपीरियर सुपरफिशियल हो गए जो सीधे सीधे आ रहे हैं, अनदर आर डीप, ठीक है। Any doubt? इसमें कुछ डाउट आपको? इसमें भी क्या होता है, जैसे स्टेट वाला ना एक से एक निकल के नीचे आएगा, सिमिलरली डीप वाला जो क्रॉस करेगा। तो 4 है तो 4 सुपरफिशियल 4 डीप हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला दिख नहीं रहा आपको सुपरफिशियल, इसमें भी एक होना चाहिए था इधर, ओके। तो फेटलॉक जॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? Another joint, that is the passion joint. This is the passion joint which is present between the first phalanx, ये first phalanx है और ये second phalanx है। तो जो passion joint है इसमें आप देखोगे सिंपल सीधे सीधे ये जा रहा है collateral ligaments। ये मैंने पहले ही बता दिया था, collateral ligaments are mandatory for the ganglymus type of joint और hinge joint, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे where this passion joint is located and the bones which are involved in the formation of the passion joint. Anybody? अभी बताया था फर्स्ट phalanx and second phalanx. फर्स्ट phalanx एंड सेकंड phalanx, ठीक है। ये दोनों के बीच में होगा, तो पहले आप ही बताओगे कि वेयर दिस जॉइंट इज प्रेजेंट। फिर सेकंड थिंग आ जाएगा इसमें कैप्सुलर लिगामेंट तो हो गई, फ्रॉम फर्स्ट phalanx टू सेकंड दिस phalanx, from distal extremity of the first phalanx to the proximal extremity of the second phalanx there is presence of the capsular ligament and that wraps the single digit, ठीक है। एक डिजिट के लिए एक कैप्सुलर लिगामेंट होगा, ठीक है। तो वो हो गया, वो दोनों चीज तो मैंडेटरी है ही। उसके अलावा आप देखोगे कोलेटरल के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल लिगामेंट्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट। दे आर आल्सो नोन एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, ऑल्दो दे आर नॉट विजिबल हियर, ठीक है। पैशन जॉइंट में सम अदर लिगामेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो एंटीरियर साइड में होंगे और पोस्टीरियर साइड में, सीधे सीधे बस उस एंटीरियर साइड की डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द फर्स्ट phalanx से जाएंगे और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द सेकंड phalanx तक जाएंगे, जाके अटैच जाएंगे, ठीक है। तो पैशन जॉइंट में बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थर्ड जो जॉइंट आएगा दैट इज कॉफिन, उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगा बिकॉज इन दैट एरिया ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ द, क्या होगा पैशन जॉइंट में प्रेजेंस ऑफ, बताओ क्या होगा वहां पे प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम द, हाँ, डिस्टल सिस्मोइड बोन्स रहेगी, इसीलिए उसमें अदर लिगामेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अब आप कॉफिन जॉइंट देखोगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, कैप्सुलर लिगामेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपको पता है मैंडेटरी है बिकॉज दिस जॉइंट इज हिंज जॉइंट। तो क्या होना चाहिए, कौन सा लिगामेंट और प्रेजेंट होना चाहिए, एनीबडी? कोलैटरल लिगामेंट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस another ligament, although that is not specific for single this joint only, coffin joint, ठीक है। आप एक जॉइंट ये सॉरी लिगामेंट सॉरी, तो आपको ये क्रिस क्रॉस करते हुए लिगामेंट दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इधर तक आ रहा है, Yes, ma'am. दिस इज क्रूशिएट लिगामेंट। तो क्रूशिएट लिगामेंट ऐसा नहीं है कि दिस इज फॉर पैशन जॉइंट ऑल्सो एंड द कॉफिन जॉइंट, ये दोनों के लिए है, ठीक है। जो ये क्रूशिएट जो है जिसको अपन कह सकते क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर पैशन कॉफिन, मींस दिस जॉइंट इज फॉर बोथ। तो ये कहाँ से शुरू होता है, एक लिगामेंट जो रहेगा
cruciate ligament that start from the lateral aspect of the first one phalanx, ठीक है, एंड कहां तक जाएगा, क्रॉस करेगा lateral साइड से आके कहां चला जाएगा, अप टू द proximal extremity of the third phalanx, ठीक है. सिमिलरली ये वाला जो होगा फर्स्ट phalanx से आएगा अप टू द proximal end of the third phalanx. तो इनका काम क्या होगा, टू कीप दीज टू डिजिट्स इन प्रॉपर पोजिशन, ये दोनों डिजिट्स को जोड़ के रखेगी, ठीक है. ये एक 1 2 3 phalanges से एक डिजिट का, ये 1 2 और 3 phalanges से एक डिजिट का, ठीक है. इन दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़ के रखना है, ठीक है. टू कीप दीज टू डिजिट्स इन अ प्रॉपर पोजिशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रूशिएट लिगामेंट, एंड दिस क्रूशिएट लिगामेंट इज नॉट फिक्स फॉर एनी पर्टिकुलर जॉइंट, ठीक है. ये दोनों जॉइंट अगर अपन पैशन एंड कॉफिन की बात करेंगे, दोनों के लिए ये अलग से नहीं है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट phalanx और थर्ड phalanx के प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी तक आएगा. सिमिलरली ये वाला होगा, दूसरी वाली फर्स्ट phalanx से स्टार्ट होगा एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द थर्ड phalanx. तो ये क्लियर हुआ क्रूशिएट लिगामेंट. Yes, ma'am. अब उसके बाद आ जाएगा सम अदर लिगामेंट्स. आप देख रहे हो सुपीरियर नेविकुलर लिगामेंट दिख रहा है, और एक नाम आ रहा है इंफीरियर नेविकुलर लिगामेंट. इज इट क्लियर? दो नाम दिख रहे हैं आपको, सुपीरियर नेविकुलर लिगामेंट एंड इंफीरियर. ये मैंने नहीं बताया अभी आपको, ठीक है. तो बिकॉज नेविकुलर इज अनदर नेम फॉर, अभी बताओ आप लोग. Distal sigmoid bone. ठीक है, तो डिस्टल सिस्मोइड के लिए तो सुपीरियर नेविकुलर लिगामेंट है. एक्चुअली दिस लिगामेंट जो है इट डिटैचेस फ्रॉम द कोलेटरल लिगामेंट. जो कोलेटरल लिगामेंट आ रहे थे कॉमन है सभी, हैं, ठीक है, जोड़ते भी चले जा रहे हैं साथ साथ में, पर ये शुरू करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, और बीच बीच में ही जोड़ उनको भी जोड़ते जाएंगे, ठीक है. तो दिस सुपीरियर नेविकुलर लिगामेंट एज वेल एज दिस इंफीरियर नेविकुलर लिगामेंट दे डिटैच फ्रॉम द कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है. तो सुपीरियर वाला क्या चला जाएगा, कोलेटरल लिगामेंट से निकलेगा एंड गिव्स एंड गेट्स अटैच्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द डिस्टल सिस्मोइड बोन, ठीक है. कहां से निकलेगा, इट डिटैचेस, तो फाइबर्स दे कम फ्रॉम द कोलेटरल लिगामेंट, वहीं से कुछ फाइबर्स डिटैच होंगे, ठीक है. और कहां जाके अटैच जाएंगे, ये सिस्मोइड बोन है, डिस्टल सिस्मोइड बोन, जिसको अपन नेविकुलर बोन भी कहते हैं, ठीक है. तो सम फाइबर्स दे डिटैच फ्रॉम द कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, एंड दैट get attached on the proximal part of the distal sigmoidal bone, ठीक है. Similarly the inferior navicular ligament है that also detached from the collateral ligament and gets attached on the distal part of the this distal sigmoidal bone या sigmoid bone कह सकते हैं, ठीक है. ये क्लियर हुआ सुपीरियर एंड नेविकुलर लिगामेंट? नहीं हुआ तो फिर बताओ, फिर से पूछो, बताओ. सुपीरियर नेविकुलर लिगामेंट एंड इंफीरियर नेविकुलर लिगामेंट. मैम एक बार सुपीरियर वाला एक बार दोबारा बता दीजिए. देखो सुपीरियर जो सिस्मोइडियन या नेविकुलर लिगामेंट भी कह सकते हैं, उसको सिस्मोइडियन भी कह सकते हैं, बिकॉज नेविकुलर स्पेसिफिक टू डिस्टल सिस्मोइड, इसलिए यहाँ पे सिस्मोइड ना लिख के नेविकुलर लिखा है, ठीक है. तो सुपीरियर जो है नेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, बिकॉज ये जो आ रहा है कोलेटरल लिगामेंट, the fibers for this superior navicular ligament they get detached from the collateral ligament, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, ठीक है. तो they detached from the collateral ligament and gets attached on the upper part of the upper part of the distal sigmoid bone कह सकते हैं, not sigmoidal, distal sigmoid bone और navicular bone पार्ट में जाके अटैच होगा. कौन सा, सुपीरियर. सिंपल है. इंफीरियर भी वहीं से निकलेगा, बट डिटैच कहाँ होगा, जाके जुड़ेगा कहाँ पे, एनीबॉडी? Distal part of distal sigmoid bone. लोअर पार्ट कह सकते हैं और डिस्टल पार्ट ऑफ द डिस्टल सिस्मोइड बोन, ठीक है. तो दीज टू आर मोर और लेस सेम बट पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है. एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा. तो एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, ठीक है. अच्छा, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, दिस इज नॉट द लिगामेंट. व्हाट इज दिस? देखो नाम लिखा हुआ है इसमें, Distal टेंडन ऑफ द डीप डिजिटल फ्लेक्सर, ठीक है. जो ये आया था ना, ये कट के ये आके ये वाला ये आ रहा है, ये वाला ये आ रहा है, ठीक है, जो कि इंसर्ट होता है थर्ड phalanx में. मैंने अभी मसल नहीं पढ़ाई है, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है. तो दीज टू जो पीच कलर या डार्क कलर जो दिख रहा है, नॉट दिस वन,
these are not the ligaments, but they are the continuation. इसका continuation ये कट गया यहाँ से, ये continuation इधर आएगा, ये continuation जाके इधर आएगा. इसको हमने कट के अलग कर दिया है ना दिखाने के लिए. ओके, तो ये कंटिन्यू करके ये इधर चला गया, ये कंटिन्यू करके इधर चला गया, बिकॉज दीज टू जो टेंडन है दे इंसर्ट ऑन द थर्ड फैलेंक्स. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द मैनस, ये एक बार में याद नहीं होगा. इसको आपको ये डायग्राम को बार बार देखना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एबल टू कैच द थिंग्स. ठीक है, मैंने जैसे बता दिया, इसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, थोड़ा सा. ठीक है, बोन्स ये फर्स्ट फैलेंक्स है, यहाँ से सेकंड फैलेंक्स शुरू हुई और यहाँ से थर्ड फैलेंक्स है, इधर से लेके इधर सेकंड है, और ये डिस्टल सिस्मोइड बोन है. these are the proximal sigmoid bones. तो any confusion regarding this? Now I want to show some joints. You can see here, this is the broken part of the scapula. ठीक है, और ये आप टूटा हुआ देख रहे हैं, this is the humerus bone. ठीक है, this is scapula, broken part of the scapula. Here is the humerus bone. इन दोनों के बीच में आपको मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा. The joint, this is the head of the this humerus, and here is the glenoid cavity. ठीक है, glenoid cavity जो दिख रही है, and joint जो form हो रहा है, this is the shoulder joint. ये दिख रहा है, क्योंकि आपको हटा के तो बहुत सारी चीज नहीं दिखा सकते. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये पार्ट क्या दिख रहा है? नहीं समझ में आ रही है? ये नहीं समझ में आ रहा. हेड तो आर्टिकुलेट कर रहे ना, ये देखो, दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये दिख रहा है, ये दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस. गोल दिखाई दे रहा है. ठीक है, और इधर साइड में जो जाएंगे आप देखोगे, ये जो है एक्चुअली हॉर्स का है, तो उसमें ग्रूव्ड है. ये जो दिख रहा है, दीज आर दी ट्यूबरोसिटीज, जो आप लेटरल और मिडिल ट्यूबरोसिटी देख रहे थे. ठीक है, एंड ये जो मसल आ रही है, दिस मसल इज द बायसेस ब्रेकाई. मसल कौन सी है? इंटर, आपने पढ़ा होगा, बाइसेप्टिकल ग्रूव पढ़ा था. ठीक है, तो ये जो मसल आ रही है, दिस इज द बायसेस ब्रेकाई मसल. ठीक है, और ये ग्रूव बनेगा, और उसमें से क्योंकि हॉर्स का है, तो ये ऐसे ग्रूव मसल इधर से जाएगी और ह्यूमरस में आगे की तरफ रहेगी. दिस इज द बायसेस ब्रेकाई मसल. ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है बायसेस ब्रेकाई का? इधर से होगा. नेम द पार्ट from where the biceps brachii muscle originate. कहाँ से originate होती है? Anybody? नहीं याद? Origin of the biceps brachii. This is biceps brachii muscle. किसी को नहीं याद है? अंकित? मैम ट्यूबर स्कैपुला. गुड. सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल और ट्यूबर स्कैपुला. तो ये यहाँ से होके, ये स्कैपुला है, ये यहाँ से होके आ रही, बिकॉज आप स्कैपुला ऑफ हॉर्स है. यहाँ पे एक्रूमेंट प्रोसेस नहीं दिख रही, टूटी हुई है ना ये बोन. तो स्कैपुला में यहाँ पे आपको एक्रूमेंट प्रोसेस नहीं दिख रही है, मतलब दिस जॉइंट इज ऑफ हॉर्स. ठीक है, ये हॉर्स का जॉइंट है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रूव है काफी वाइड है. ठीक है, और दिस मसल इज द बायसेस ब्रेकाई. और जॉइंट अगर आप देखोगे तो दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस, ये दिख रहा है, और ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे. बाकी लिगामेंट दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिगामेंट को हम अगर करेंगे, कट करेंगे, तो जॉइंट टूट जाएगा. दिस इज एल्बो जॉइंट. ये देखो, ये रेडियस अल्ना का आपको अपर पार्ट दिख रहा है टूटा हुआ. ठीक है, और आप यहाँ देखो, देयर इज ब्लूइश टिंज दिख रही है.
एक फर्स्ट डिजिट, एक डिजिट यहाँ थी और एक यहाँ थी, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, अभी मैंने केवल फर्स्ट फैलेंक्स ही लगाया, सेकंड थर्ड नीचे और कहीं टूटी पड़ी होगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फैलेंक्स, ठीक है। तो ये जॉइंट जो मूव कर रहा है कौन सा जॉइंट होगा? दिस जॉइंट इज which is movable here. Hinge joint. Name the joint. Padlock. Fetlock. तो fetlock joint is having on its caudal aspect क्या होता है? Presence of digit phalanges. Sesamoid. How many sesamoid bones are present in each limb? 4. मैम 4 तो दिखाया होगा मैडम ने, यू कैन सी हियर, ठीक है। 4 आपको दिख रहे गोल गोल दाने जैसे, ये सीड लाइक, ये जुड़े हुए, अगर इसको हटा देंगे लिगामेंट को तो ये हट जाएंगे, ठीक है, अलग हो जाएंगे। यू कैन सी दीज 4 आर द, जो आपने डायग्राम में देखा था 1 2 3 4, आर दे विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है। तो दीज आर द प्रॉक्सिमल सिस्मोइड बोन, बिल्कुल ये पीछे की तरफ का हिस्सा आप जो देख रहे हो, दिस इज द कॉर्डल एस्पेक्ट। एंटीरियर साइड से नहीं दिखाई देगी, दिस इज एंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो कॉर्डली 4 सिस्मोइड बोन्स आर प्रेजेंट, मींस फॉर ईच डिजिट हाउ मेनी? ईच डिजिट 2, इसके लिए 2 है, इस डिजिट के लिए 2 है, तो टोटल 4 सिस्मोइड बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इनके बीच में जो लिगामेंट है, आप ऐसे अलग अलग करके तो देखेंगे नहीं, तो ये वाले कौन से होने चाहिए? बिटवीन दीज सिस्मोइड बोन्स लिगामेंट्स आर इंटर सिस्मोइडल लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ से इधर जोड़ने वाले जो होंगे दोनों तरफ कोलेटरल सिस्मोइडल लिगामेंट, ठीक है। और बाकी जो ऊपर आपको ड्राई दिख रहा है ना, दिस इज द सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट, जो ये मैंने पकड़ा हुआ है, ऊपर से पूरा कटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा स्टंप लगा हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सुपीरियर और सिस्मोइडल लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट वो ऐसे जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट इस तरीके से जाएगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ड्राई पार्ट लिया हुआ है हमने, वी हैव रिमूव ऑल द मसल्स, ठीक है। तो यू आर नॉट एबल टू सी, जस्ट ओनली स्टंप कैन बी सीन, ये स्टंप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ रिगार्डिंग दिस जॉइंट्स? Yes, ma'am. तो इसको आप पढ़ना, फिर से बुक खोल के डायग्राम देखना, फिर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास से बताना, ठीक है। क्लियर? नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। तो एनी डाउट यू कैन आस्क, जल्दी से बताओ। यदम? No, ma'am. बलवंत? No, ma'am. ठीक है। So now I am leaving the class.